Hello students, let's see exercise 6.14. So in this problem, figure shows a metal rod PQ. This is the metal rod PQ. Okay, this end is P, let it be, and Q. Okay, resting on a smooth rails AB, which is as shown in a figure. Okay, then after, and position between the two poles of a permanent bar magnet, you can see that. Okay, the rails of the rod and the magnetic field are in mutually perpendicular direction. Here the rails, the rod and the magnetic field, all the three are mutually perpendicular. You can see that rails are in this direction, rod is going inside, okay, and magnetic field is in this direction. Okay, let's visualize the situation over here with the help of three mutually perpendicular axis, okay, of coordinate system. Let it be x-axis, this one be z, and our direction which is going inside is what, y. So here I can say the rod PQ is in y direction, the rails AB is along x direction, and magnetic field is in downward direction from north pole to south pole is in this direction. So this must be in what, negative z direction over here. Okay, here the galvanometer G is connected to the rail through this switch K. Okay, length of rod is 15 centimeter over here. Then after, magnetic field is 0.5 Tesla. Resistance of the closed loop containing the rod is what, 9 milliohm. Assume the field to be uniform. Here field produced due to this north pole and south pole is what, uniform. In part A, suppose key K is open. Initially this key K is open in part A. Here, and this rod PQ is moving with a speed what, 12 centimeter per second in the direction shown. Give the polarity and magnitude of induced EMF. So here we have to find the polarity and magnitude of what, induced EMF. Okay, so over here with the help of Fleming's left hand rule, okay, you can see that अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करें तो जो थंब होता है वो क्या दिखाता है, फोर्स. इंडेक्स फिंगर, दिस फिंगर, ओके, शोज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस वन शोज व्हाट, वेलोसिटी. तो ये आपका एफ है, ये बी है और ये बी है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है और वेलोसिटी आपकी ऐसे है, आप देख सकते हो. लेफ्ट हैंड रूल अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे यूज करें, ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटेड बाय व्हाट, इंडेक्स फिगर, ठीक है. चलो, तो ये आपका थंब कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, अंदर की तरफ, टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन. मतलब अगर फोर्स पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर पी एंड पे लग रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज होंगे वो उसके ऊपर फोर्स कौन सा एंड के ऊपर लग रहा होगा, टुवर्ड्स एंड क्यू. तो यहाँ पे है वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा. सो हियर आई कैन से व्हेन की K is open, okay, and rod is moving with speed v in magnetic field, with speed v in uniform magnetic field, force F is equal to Q into V cross P acts on free charges inside the rod. Free charges inside the rod. Okay, so here I can say, so according to Fleming's left hand rule, according to Fleming's left hand rule, electron experiences force towards Q and force towards and Q. Okay, so here we can say the polarity of EMF, okay, is from what, or you can say direction of induced EMF is from P to Q. So here we can say, and Q becomes negative and P becomes positive. Here in this part we have to find the magnitude of induced EMF also.
we know that it is what BVL. B आपको यहाँ पे दिया है 0.5, I can write it 1/2. V है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आप लिख सकते हो 12 into 10⁻² मीटर पर सेकेंड, and the length is what 15 centimeters, so I can say it is what 15 into 10⁻². okay, 15 into 12 हो गया आपका 180 डिवाइड बाई 2, 90 into 10⁻4 watt. So this is the magnitude of induced EMF which is asked in part A of this problem. Now let's see part B of this problem. Okay, in part B, is there an excess charge build up at the ends of the rods when key is open? So here I can say yes, excess charge build up at the ends of this rod when key is open. Initially केस ए पे देखो की ओपन थी, एक्सेस चार्ज बिल्डअप हो रहा था. पी पे नेट एक्सेस चार्ज कितना था, पॉजिटिव था. क्यू पे कितना था, नेगेटिव चार्ज था. ठीक है, जब की क्या थी, ओपन थी. सो हियर आई कैन से यस, नेट पॉजिटिव एक्सेस चार्ज will build up at end P and net negative charge will build up at end Q over here. Okay, and here in the same part, what if K is closed? अगर आप की को क्लोज कर देते हो तो क्या होगा. देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज है, तो ये ईएमएफ के जैसे बिहेव करता है, बैटरी के जैसे. तो यहाँ पे आप देखो पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा. सो हियर आई कैन से व्हेन की के इज क्लोज्ड, current will flow from P to Q through galvanometer. Through what? Galvanometer. Okay, now let's see part C. In part C, with K open and the rod moving uniformly, स्विच K ओपन है, ठीक है, पार्ट सी में. इसको हम लोग वापस ओपन दिखा देते हैं. ठीक है, ये हो गया ओपन. ठीक है, K open है and this rod is moving uniformly. There is no net force on the electron in the rod PQ, even though they do experience some magnetic force due to motion of rod. Yes, अब देख सकते हो यहाँ पे ये मोशन की वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स QBB जितना लग रहा था. फिर भी आपको बोल रहा है कि जब की ओपन होती है तो इसके इनसाइड जो चार्जेस होंगे उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो की होता है, इसके ऊपर तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कैसे जीरो होता है ये हम लोग समझते हैं. चलो यहाँ पे आप देखो, इसको रॉड PQ में यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको. ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया, सपोज यहाँ पे इनसाइड को इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेता हूँ, तो उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टुवर्ड्स एंड Q फोर्स लग रहा है कितना, EBB जितना मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हुआ, मतलब यहाँ पे ये एंड जो है वो नेगेटिव बन गया और ये वाला जो एंड है वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा. नेट एक्सेस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा, यहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. तो उसकी वजह से देखो यहाँ पर नेट पॉजिटिव है, यहाँ पर नेट नेगेटिव है, तो एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, एक्सेस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. कितना, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर वी नो दैट इट इज व्हाट, Q इंटू ई. इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, तो ई इंटू ई जितना क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो. सो हियर वी कैन से ड्यू टू एक्सेस चार्ज at the ends of rod PQ, electric field will develop, okay, from end P to Q, which applies a force on electron in opposite direction. Okay, so we can say net force, okay,
when key k is open is 0. Okay, now let's see the part D. Okay, in part D, what is the retarding force on the rod when k is closed? We have to find what retarding force over here. Okay, so we know that here when switch k is closed, current is passing in this rod. Okay, so here we can say a force on this current carrying rod, which is what ILB, will act in the direction opposite to what motion. ठीक है, अपोजिट टू मोशन उसके ऊपर फोर्स लगेगा ILB जितना. अभी I क्या होता है, E/R. सो E/R LB, E हमें पता है, BVL होता है. सो क्या हो जाएगा, B². चलो एक स्टेप ज़्यादा लिख देते हैं, BVL L इंटू B/R. सो ये क्या हो जाएगा, देखो B² L² V/R. देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सब वैल्यू है. B की वैल्यू कितनी है, 0.5. 0.5 का स्क्वायर. लेंथ भी हमें पता है कितनी है, 15 सेंटीमीटर. सो आई कैन से 15 इंटू 10⁻²का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v. आप देखो यहाँ पे v कितना है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. सो आई कैन से 0.12 मीटर पर सेकेंड. ओके, और डिनोमीटर में रेजिस्टेंस R है जो हमें यहाँ पे दिया है, कितना है, 9 मिली ओम. सो हियर आई कैन से 9 इंटू 10⁻3. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फोर्स का आपका आंसर आएगा 7.5 इंटू 10⁻² न्यूटन. ठीक है, तो ये हो गया फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, बिकॉज इट अपोजेस व्हाट, मोशन. नाउ इन पार्ट E, we have to find how much power is required to keep the rod moving at a speed 12 centimeter per second when key K is closed. जब की key closed है तब ये वाले में भी key close कर देते हैं, तभी इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा पार्ट डी में. ठीक है, तभी उसमें से क्या हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा. मतलब यहाँ पे पार्ट डी में की क्लोज होगी, इतना फोर्स लग रहा होगा. अब पार्ट ई में आपको पूछा है कि इसकी स्पीड कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, आपको कितना पावर अप्लाई करना पड़ेगा. तो हमने पता है कि वो मैकेनिकल पावर हमें अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, मतलब मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ये डायरेक्शन में. ठीक है, टू अपोज दिस फोर्स ILB. ओके, नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा. ठीक है, तो मैकेनिकल पावर वो कितना होता है, वो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला होता है P = F × V. ठीक है, F बच्चों यहाँ पे है हमारे पास कितना है, 7.5 इंटू 10⁻². और वेलोसिटी देखो यहाँ पे आपके पास दी है कितनी है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.12 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, चलो तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 9 इंटू 10⁻³ वाट. तो इतना मैकेनिकल पावर चाहिए. नाउ लेट्स सी पार्ट F. हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड एज अ हीट इन द क्लोज्ड सर्किट. इन पार्ट F आई कैन से power dissipated as a heat in a closed circuit is equal to, we can say what, mechanical power, okay, required to keep the velocity constant. जितना मैकेनिकल आप वर्क डन कर रहे हो उतना ही क्या होगा, हीट लॉस के फॉर्म में डिसिपेट होगा, क्योंकि लूप का रेजिस्टेंस आ रहा है तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, हीट लॉस होगा. सो हियर आई कैन से पावर लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट कितना होगा, पावर लॉस in form of heat I can say P is equal to सेम इतना ही होगा, 9 इंटू 10⁻³ वाट. ठीक है, चलो ये दोनों इक्वल होता है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने ये टॉपिक देखा है. उसमें हमने देखा था कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लास्ट में क्या होती है, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में इन फॉर्म ऑफ हीट क्या होती है, डिसिपेट होती है. ठीक है, चलो नाउ लेट्स सी पार्ट लास्ट सेक्शन G. ओवर हियर द क्वेश्चन इज, पार्ट F में एक और आपको क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर. ये जो पावर लॉस हुआ उसका सोर्स क्या है. ठीक है, सो हियर आई कैन से मैकेनिकल वर्क, ओके, मैकेनिकल पावर, ओके, इज द सोर्स ऑफ दिस पावर विच इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट. ये मैकेनिकल वर्क डन आपने जो किया वही क्या होता है, आपका सोर्स होता है. सो हियर आई कैन से मैकेनिकल वर्क डन इज
source of this power. Okay, now let's see part G over here. Part G में पूछा what is the induced EMF in the moving rod if the magnetic field is parallel to the rails. अगर आप देखो ये रेल्स है वो कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में था, मतलब दोनों परपेंडिकुलर था। लेकिन अब आपको दिया है कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, मतलब रेल्स जो डायरेक्शन में वही डायरेक्शन में पैरेलल है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। सो हियर आई कैन से इन पार्ट जी I can say induced EMF is 0. Why? Because here I can say magnetic field, okay, और जो velocity होगी वो दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब जबकि परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये V रॉड मूव होने से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर चार्ज जो होता है उसके ऊपर फोर्स जो लगता है Q V क्रॉस B, ठीक है। तो V और क्रॉस B आप देखो, फोर्स जो होता है V क्रॉस B का प्रोडक्ट होता है, इसके इनसाइड जो चार्जेस है उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो अभी अब V और B पैरेलल है तो दोनों का पैरेलल वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा। कोई फोर्स नहीं लगेगा तो चार्जेस ना ही यहाँ पे एक्सिस चार्ज मिलेगा, ना ही यहाँ पे आपको एक्सिस चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि EMF कितना इंड्यूस्ड होगा, 0, ठीक है। So here I can say induced EMF is 0 because B is parallel to V, and here we can say force F is equal to Q V cross B भी आपका कितना होगा, 0 होगा। ये भी आप रीजन दे सकते हो, ठीक है।